Good afternoon, friends. Yesterday, we were on Section 1 of Indian Evidence Act. Just a small recap. We had started with the preamble in which we saw that Indian Evidence Act is a consolidating, amending and defining act. We also saw how it consolidates Hindu law, Muslim law, as well as the common law. We then went on to read all the aspects of Section 1. Before we came to Section 1, we discussed three cardinal philosophies of Indian Evidence Act. The first one being the best evidence rule, which I contrasted with the best rule of evidence. Then we discussed about the necessity of relevance and its relationship with admissibility. And the third cardinal philosophy dealt with appreciation of evidence, in which we also dealt in detail all the aspects of judicial discretion. We then came on yesterday to Section 1. I told you Section 1 deals with jurisdiction. As far as jurisdiction is concerned, we saw that Section 1 deals with two types of jurisdiction: territorial and subject matter jurisdiction. Territorial jurisdiction, it applies to India. India means it has been defined in Section 3 as a territory of India. And Jammu and Kashmir now, of course, has been now withdrawn because of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. Entry 44 tells us that now Indian Evidence Act applies to Jammu and Kashmir also. We then came to the subject matter jurisdiction. As far as subject matter jurisdiction is concerned, there were two aspects, one positive and the other negative. The positive aspect was that it applies to, and we discussed both the aspects where it applies to. So subject matter jurisdiction can be divided into two parts. Firstly, where it applies and where it does not apply. Secondly, so where does it apply? To all judicial proceedings in or before a court. We discussed all the aspects of what is a judicial proceeding, especially in the context of a court. And in this respect, I spent a lot of time yesterday in my previous lecture on the difference between a court and a tribunal, with special reference to a very important Supreme Court judgment of S.D. Joshi. We saw all the aspects of a tribunal. All courts are tribunals, but all tribunals are not courts. We dwelt on this for a very long time. We dwelt on the word judicial. Judicial has two aspects. One, that which a judge does in a court, and the other, the administrative aspects, basically dealing with quasi-judicial aspects of a tribunal. We then discussed the second aspect, the application of Indian Evidence Act to courts martials. Whether it's Army, Navy or Air Force, all courts martial, because then courts martial, as I said, give punishments, which can even be death penalty. That is why the strict standards of Indian Evidence Act need to be applied to courts martial. These were the two things we dealt with in my previous lecture. We now go to the negative aspect. Indian Evidence Act does not apply. For this matter, I would like to go back to Section 1, the last part, but not negative to affidavits. So Indian Evidence Act does not apply to affidavits presented to any court or officer. So any affidavit which is presented to any court or officer, nor to proceedings before an arbitrator. So nor will they apply to any proceedings before an arbitrator. Let's discuss these two aspects. The first aspect, Indian Evidence Act
does not apply to affidavits presented to a court or any officer. Firstly, what is an affidavit? पहले basics पे जाए. I would like to quote. Affidavit is a term or expression which is normally understood as a written statement swearing to the facts before an authority competent to administer an oath. Affidavit is a term or expression which is normally understood as a written statement swearing to the facts before an authority competent to administer an oath. Oaths are governed by the Indian Oaths Act 1969. So, oath का जहां तक सवाल है, all affidavits के अंदर जो oaths होती हैं, they are governed by, as I said, the Indian Oaths Act. Affidavits किसके सामने swear किए जा सकते हैं? दोनों, अगर हम CPC और CRPC में आए, दोनों में बताया हुआ है. Affidavits can be sworn before any judge, any judicial or executive magistrate, or any commissioner of oath who is appointed by the High Court or the Session Court, or any notary. Notaries are appointed under the Notaries Act 1952. ये सब लोग affidavit बनवा सकते हैं. Now the question arises, affidavit is not evidence. What does it mean? And why? ऐसा क्यों? We must go into the why of everything. एक एफिडेविट मेरा एक कागज का टुकड़ा है जिसमें मैंने ओथ पे बोला है. कोई गारंटी है कि जो मैंने बोला है ओथ पे वो बिल्कुल सच ही बोला होगा? कैन यू टेक अ गारंटी? वी कांट. तो इस कागज के टुकड़े को, जिसको जो मैंने कहा है कि मैं अंडर ओथ बोल रहा हूं, अगर इसको मैं फाइनल मान लूं, यानी कि इतना बड़ा प्रिजम्पशन ले लूं कि क्योंकि मैंने ओथ लिया तो मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता, और इसको एविडेंस मान लूं फाइनल, तो सोचिए कितना नुकसान होने वाला है. दैट इज द रीजन वाई हम एफिडेविट को पर से ओथ नहीं मान सकते, सॉरी, एविडेंस नहीं मान सकते. जब एविडेंस नहीं मान सकते तो फिर एफिडेविट लेने का फायदा क्या है? देन व्हाई टेक एन एविडेंस? व्हाई टेक एन एफिडेविट? दो कारण है. ये क्वेश्चंस इंटरव्यू के क्वेश्चंस है कि जब एफिडेविट एविडेंस ही नहीं है, लेते क्यों फिर? दो एस्पेक्ट्स. पहला, अंडर ओथ है, और अब अगर आप झूठ बोल रहे हो तो मैं आपके खिलाफ सेक्शन 193 आईपीसी में कार्रवाई कर सकता हूं. 7 साल की सजा है उसमें. So that means if I give a false affidavit before a court, then section 193 IPC can try me for and punish me up to 7 years. तो जहां कागज हमें सोलम चाहिए, जहां हमें चाहिए कि जो आदमी कागज दे रहा है कोर्ट में वो झूठ ना बोल रहा हो, जैसा कि प्लेंट, जैसा कि आजकल WS, हम अंडर एफिडेविट लेते हैं. कि हम चाहते नहीं है कि आप वाहियात कॉक एंड बुल स्टोरीज बताते रहो और हम उनको मानते रहे, फिर एंड में आपको हे सर मैंने तो झूठ बोला था. ऐसे नहीं हो सकता. वी कांट वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट. तो ऐसे बहुत सारे सोलम ओकेजन्स होते हैं जहां हमने कागज डालना है जिस पे रिलाई किया जा सके. पर ये गारंटी नहीं है कि मैं 100% सच बोल रहा हूं ओथ पे. वो राम राज्य की बातें, जब हम कहते थे कि एक बार मैंने संकल्प ले लिया ईश्वर का तो मैं तो झूठ नहीं बोल सकता हूं, मर जाऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा. अब कलयुग है,
ऐसा नहीं होता. So तो many times we need solemn occasions पे हमें कागज चाहिए जो ओथ पे चाहिए. तो अब अगर मैं झूठ बोल रहा हूं और अगर कोर्ट में या किसी ऐसे ऑफिसर के सामने जो सेक्शन 193 आईपीसी में कवर हो रहा है और अगर मैंने झूठा ओथ पे एक एफिडेविट बना दिया, 7 साल की सजा तैयार है. ये है पहला बेनिफिट. दूसरा एक और बेनिफिट है. अगर मैं कोई एफिडेविट में कोई एडमिशन करता हूं, इफ आई मेक एनी एडमिशन, एडमिशंस का एक बेसिक लॉ है जो हम आके देखेंगे, एविडेंस एक्ट में आगे जाके देखेंगे. एडमिशंस आर ऑलवेज रेलेवेंट. तो जो भी कभी भी मैं कोई एडमिशन करता हूं, एडमिशन तो एडमिशन है, चाहे मैंने कोर्ट के सामने की है चाहे मैंने कोर्ट के बाहर की है. और खासकर जहां मैं ओथ पे एडमिशन कर रहा हूं, admissions can be used as evidence. Admissions can be used as admissions. ये तो है नहीं कि मैं वहां और कुछ बोल रहा था, मैंने और कुछ कहा जी नहीं एडमिशन मेरी ये थी जी. तो एडमिशंस का एक प्रिजम्पशन होता है कि कोई भी आदमी एडमिट करते वक्त झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि एडमिशंस हमेशा एडमिशन करने वाले के खिलाफ होती हैं. तो कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ नहीं बोलेगा, और अगर वो बोल रहा है तो सच बोल रहा होगा. इसीलिए एडमिशंस का एक अलग स्टेटस है. तो अगर मैंने एफिडेविट में कोई एडमिशन कर लिया, आई कैन नाउ ऑलवेज प्रिज्यूम दैट द एडमिशन वाज करेक्ट and I can use that admission later on if the need arises. So I hope you have all understood कि हम affidavits क्यों लेते हैं. Right now we are discussing that affidavits are not evidence. तो affidavit evidence कब बनेगा? जब मैं डिपोनेंट को, डिपोनेंट मीन जिसने एफिडेविट दिया है, उसको कोर्ट में बुलाऊंगा और वो जो एफिडेविट में उसने बातें कही हैं उनको वापस अंडर ओथ कोर्ट के सामने बोलेगा. सो विच मीन्स एन एफिडेविट इज अ मियर कागज का टुकड़ा. हां, अगर झूठ बोला पकड़ा गया तो 193 की कार्रवाई होगी या एडमिशंस की तरह यूज किया जा सकता है. बट एफिडेविट पर से is not evidence unless the person who made the affidavit comes to the court and now affirms whatever he has said in his affidavit. इसके ऊपर मैं कुछ जजमेंट्स बताना चाहूंगा. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 1996, affidavit is not evidence. Rajasthan High Court, affidavits are not evidence. Nand Kumar versus Dayanand, Bombay 1989, affidavits without verification cannot be admitted in evidence. Radhakrishnan versus Navratan Mal 1990, Rajasthan, affidavit filed by parties without giving an opportunity of cross-examining the deponent cannot be treated as evidence by virtue of section 1. Union of India versus Cavalier, Cavalier, Cavalier Shipping Company 1990, Madras, affidavits need not be presumed to be true. कोई प्रिजम्पशन नहीं है एफिडेविट के साथ.
कि ये सच ही होगा। निरंजन लाल रतन कुमार वर्सेस रिवर स्टीम नेविगेशन कंपनी, 1967, Guwahati High Court. The affidavit of a person not produced in the court is not admissible in evidence. Supreme Court. Munir Ahmed versus Rajasthan, 1989 Supreme Court. Section 3 contemplates oral evidence or documentary evidence, and evidence of a living person cannot be substituted by an affidavit. जिंदा आदमी को जिंदा पेश करो, जिंदा आदमी की जगह एफिडेविट नहीं ले सकता। राजकिशोर वर्सेस उत्तर प्रदेश, 1988 Supreme Court. Affidavit is not evidence unless it is tested by cross-examination. So that means, how do we sum it up? An affidavit is merely an affidavit when it is filed in the court. It is merely a statement under oath on paper. But when a witness appears for a cross-examination, then he either confirms or defers the contents on oath before the court. Now his statement becomes evidence. Now it is called his deposition. So what does the court finally take? What the court takes finally as evidence is not the affidavit, but what is stated in the court. So please don't forget this. Affidavit एक कागज का टुकड़ा है जिसपे मेरे ओथ है। ये कागज का टुकड़ा एविडेंस की जगह नहीं ले सकता जब तक जिसने वो कागज पे स्टेटमेंट दिया है अंडर ओथ वो कोर्ट में नहीं आता, अफर्म नहीं करता अगेन अंडर ओथ कोर्ट के सामने, एंड उसका क्रॉस एग्जामिन नहीं होता। तब दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाता है। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दिस एस्पेक्ट। एक चलन चला था, आई रिमेंबर एज ए पुलिस ऑफिसर, मैं आईपीएस में था, हमने क्या एक चलन शुरू किया। एक बार मैंने अपने सारे आईओएस को ऑर्डर दे दिया जब मैं एसएसपी था कि सारे विटनेसेस का एफिडेविट ले लो। 161 की जगह सबके एफिडेविट ले लो, सब पे प्रेशर पड़ जाएगा। तो कोर्ट में जब जाएंगे हम कहेंगे देख तेरा एफिडेविट है अंडर ओथ, अब अगर तूने चेंज किया स्टेटमेंट तो तेरे खिलाफ हम 193 का कंप्लेंट डाल देंगे। ये चलन शुरू हो गया। देखा जाए तो गलत है, आई एडमिट एंड कन्फेस। और ऐसी बात तो भनक पड़नी थी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, पड़ गई। एंड द जजमेंट केम। ये जो प्रथा है पुलिस की, एफिडेविट्स बिना कारण ले रहे हो, ये टोटली गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मजाक है। तब हमने सबने डर के मारे बंद कर दिया। लेट मी शेयर दिस जजमेंट विद यू। दिस इज रचपल्ली, RACHHAPALLI, रचपल्ली अबुलू, ABULLU अबुलू वर्सेस उत्तर प्रदेश, 2002 सुप्रीम कोर्ट।
This practice adopted by the police of taking advance affidavits of all witnesses is an attempt to befool and dissuade illiterate witnesses to speak truth or exactly what they have given in affidavit, which may be tutored by the police. It shows affidavits must necessarily have been cooked up, otherwise there was no need, or by playing a fraud upon them by the police. This amounts to interference with criminal justice system. We abhor it totally. तो हमने जो कोशिश की एफिडेविट से खेलने की, ऊपर से डंडा आया था. पर अगर सपोज हम चाहते हैं कि हमारा एक सचमुच का एक विटनेस है और हमें डर है कि ये सच बोल रहा है अभी और कल को ये बिदक जाएगा, इसको दूसरी पार्टी खरीद लेगी. बहुत होता है ऐसा, मेरे कैरियर में बहुत बार देखा है कि एक विटनेस है, हमें लगता है ये मटेरियल विटनेस है, सिर्फ इसके साक्ष्य में, इसके एविडेंस पे एक कन्विक्शन हो जाएगा. बट ये गरीब है, डरपोक है, या तो इसको बाय बैक कर लेंगे लोग और यहां इसको डरा देंगे. अब एफिडेविट तो हमें बना कर दिए, तो क्या कोई प्रोविजन है? सीआरपीसी में है, 164 सीआरपीसी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब आपके पास प्रोविजन है उसका यूज करो, ले जाओ उसको मजिस्ट्रेट के सामने, उसका बयान कराओ, अनुरोध है वो. सो 164 का स्टेटमेंट जो मैजिस्ट्रेट लेगा, दैट हैज सैंक्टिटी, जज के सामने है वो. आप अपने एफिडेविट्स खुद मत शुरू कर दो. सो आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस एस्पेक्ट. दो एक्सेप्शन है इस रूल के. इस रूल का मतलब सेक्शन 1 के. एफिडेविट्स आर नॉट एविडेंस subject to two aspects both in CPC and CRPC. When I come to Order 19, Order 19 read with Section 30C CPC. Certain evidences may be ordered to be taken as evidences through affidavits only. Exception है ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है आपका, ये क्वेश्चन इंटरव्यू का है आपका, ये क्वेश्चन मेंस का है आपका. व्हाट इज अ क्वेश्चन? मेंस का क्वेश्चन लिख लो 5 नंबर का या 7 नंबर का. Indian Evidence Act does not apply to affidavits. Do you agree with this statement? Critically examine. Second question. What are affidavits? Why is Indian Evidence Act not applicable to them? Discuss the exceptions to this rule. ये पूरा क्वेश्चन. तो ये तो हो गया हमारे पास सीपीसी. हाउएवर 19 ऑर्डर 19 में जब हम जाते हैं तो हम एक चीज देखेंगे. एक चीज हमेशा याद रखनी है, नेचुरल जस्टिस. नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है दोनों तरफ की सुनवाई होनी अनिवार्य है. अगर दोनों तरफ की सुनवाई नहीं हुई तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ये बात. तो जहां आप ऑर्डर 19 में एविडेंस थ्रू एफिडेविट ले रहे हो यानी कि विटनेस को नहीं बुला रहे, तो विल द अदर पार्टी नॉट ऑब्जेक्ट? इसीलिए ऑर्डर 19 जब हम देखेंगे बाद में जाके, सीपीसी में आ रहे हैं हम, ऑर्डर 19 कहता है कि अगर पार्टी ऑब्जेक्ट करे तो बुलाना पड़ेगा.
सो ऑर्डर 19 कब इफेक्ट होगा? जब पार्टीज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जब एक बिल्कुल मंडेन टाइप का एविडेंस है, एक इंसिपिड टाइप का एविडेंस है, जिसको पार्टी कहती है जी टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है सर, हम एविडेंस बाय एफिडेविट लेने को तैयार है। सो ऑर्डर 19 भी अगर हम देखें तो एक एफिडेविट अंडर लॉट्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, लॉट्स ऑफ सेफगार्ड्स में बनाया गया है। एक कोई ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं मिल रहा है एफिडेविट्स को, ये ध्यान में रखना है। I'll advise you to go through order 19 while writing this answer. Similar provision CRPC में भी है। पब्लिक ऑफिसर का हम CRPC में हम डिटेल में पढ़ेंगे। So CRPC में we have similar provisions when we come to sections 296 and 297 CRPC. Similar provisions where affidavits may be used as evidence. ये दो हमारे पास exceptions हैं जहां हम despite section 1 affidavits may be used as evidence without calling the deponent to the court. I hope everybody's understood all these aspects of affidavits. मैं यहां पे दो तीन चीजें और बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम एफिडेविट्स का लॉ पढ़ रहे हैं तो पूरा ही लॉ पढ़ लें। हमेशा एक चीज याद रखनी है, कल को जब आप एफिडेविट बनाओगे या कल को एज जज लोगे तो ये देख लेना कि जो एफिडेविट बना रहा है उसकी लैंग्वेज क्या है। आपने एफिडेविट इंग्लिश में बना दिया, वो बंदा इलिटरेट है, कल को वो मना कर देगा, सर ये तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी, मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा है, मैंने ये कुछ नहीं बोला। इसीलिए whenever you are making an affidavit of an illiterate person or tomorrow as a judge you are taking the affidavit of an illiterate person, एक लाइन उसमें जरूरी होनी है, इंग्लिश में लिखा गया उसका कथन, उसका स्टेटमेंट, पर उसको उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सुनाया गया, और वो ये साइन करता है, जितना भी अंगूठा लगाता है, कि वकील साहब ने या जो भी ओथ आपका ले रहा है उसने मुझे मेरी लैंग्वेज में एफिडेविट का अनुवाद करके बताया और मैं समझ गया और मैं मानता हूं कि यही चीज मैंने कही है। तब है, इसके ऊपर एक जजमेंट है मेरे पास, अब्दुल रशीद वर्सेस कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1990 कैलकाटा, where the text of the document was in English and it was not written on the body of the document that its text was explained to the deponent who signed in Hindi. It was held that this affidavit could not be relied upon. So I hope I'm clear on these aspects. मुझे एक लास्ट पार्ट बात करनी है एफिडेविट की, इनकम टैक्स के मामलों में। इनकम टैक्स में हम जो अपना जितने भी जो भी हम अपना मैटर्स होते हैं उनको हम थ्रू एफिडेविट देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर उस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, एक प्रिजम्पशन है कि इनकम टैक्स ने वो आपके एस्पेक्ट्स मान लिए, सही है। इनकम टैक्स बिना आपको बुलाए रिजेक्ट नहीं कर सकता एफिडेविट कि ये झूठा है। इफ इट वांट्स टू थ्रो अवे योर एफिडेविट कि ये फॉल्स है, हम इसके तथ्य नहीं मानते, they must call the party and cross-examine. If they do not call the party, it will be deemed, it shall be presumed, they have
accepted the contents of the affidavit as true. Let's go to the judgments on this. We have the Supreme Court. There's a famous case of Mehta, Parikh and Company versus Commissioner of Income Tax, CIT, 1956. When the authorities did not cross-examine the deponent with reference to the statement made in the affidavit, it was not allowed to the Income Tax Department to later on challenge the correctness of the affidavit. The deponent, who was the assessee, could presume that the revenue authorities were satisfied with the affidavit. Same cheez, Allahabad High Court. Sohanlal Gupta versus CIT, 1958, Allahabad High Court. A rejection of an affidavit by the assessing authority of income tax is not justified till the assessee, who is the deponent, has been called upon and cross-examined to produce evidence in proof of his affidavit. Only if the deponent fails to appear, then only the affidavit can be considered on its face value. Sohanlal Gupta versus CIT, again Allahabad. Same. An affidavit cannot be rejected straight away. An affidavit cannot be rejected even by a tribunal, merely on the ground that no documentary evidence has been filed in support of the affidavit. Rejection of an affidavit filed by an assessee is not justified until and unless the assessee has either been cross-examined or called upon to produce evidence in favor of his affidavit. I hope everybody has understood the impact of affidavit in income tax proceedings also. I wanted to give a bigger dimension to affidavits, तो मैंने सोचा ये मेरे पास judgments हैं तो आपके साथ share कर लेता हूँ. So now I hope everybody is clear about the law of affidavits. Evidence does not apply to affidavits, exceptions being section 30C read with order 19 CPC and sections 296 and 297 CRPC. लास्ट पार्ट पे आते हैं सेक्शन 1 के. एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन क्या होता है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर, सेक्शन 89 सीपीसी. आर्बिट्रेशन का बेस क्या है? लेट्स नॉट गो इनटू लीगल जार्गन, सम बेसिक समझते. आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? दोनों पार्टी, एक तो होता है कि दूसरा पार्टी अड़ गया कि मैं तो टस से मस नहीं हूंगा, मुझे तो यही एक रिलीफ चाहिए, मैं पीछे एक कदम क्या आधा कदम भी नहीं जाऊंगा. आर्बिट्रेशन का सवाल ही नहीं है वहां. आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? चलो एक टेबल पे बैठते हैं, कुछ आप मेरी मानो, कुछ मैं आपकी मानता हूं, मिलजुल के कोई एक हल निकाल लेते हैं जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो. यह बेसिस है आर्बिट्रेशन का. अब अगर आर्बिट्रेशन में हम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ले आए एविडेंस के, तो हाथ बंद जाएंगे आर्बिट्रेटर के. बहुत सारी चीजें ऐसी जहां हमें नीचे आना पड़ेगा, पर अगर हम स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स, स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला लें एविडेंस का, इट विल बी टू डिफिकल्ट.
for an arbitrator to operate. बेसिक पर्पस क्या आर्बिट्रेशन का? हम पेंडिंग मैटर्स को कम करें, खत्म करें. अगर हम उसको स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूलाज में डाल देंगे तो खत्म कैसे करेंगे? लचीलापन चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जिसको साइंस में कहते हैं मैलेबिलिटी चाहिए, डक्टाइल चाहिए. इसीलिए हम एक रिजिड लॉ को अप्लाई नहीं करते हैं आर्बिट्रेशन पे. ये इसका वाई है. ऐसी चीजें किताबों में नहीं लिखी होती हैं. ऐसी चीजें कॉमन सेंस से अप्लाई होती हैं. आर्बिट्रेशन का एक एक्ट था सबसे पुराना 1940 का. उसमें भी बहुत क्लियर था दैट आर्बिट्रेटर्स आर नॉट बाउंड बाय द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस. तो आर्बिट्रेटर अगर स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस से बाउंड नहीं है तो फिर जंगल राज है क्या? नहीं. जहां स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस नहीं लगते, प्लीज रिमेंबर, नेचुरल जस्टिस तो लगता ही है. So whatever is not bound by the strict rules of evidence, however, nevertheless, is bound by what we call the natural rules of natural justice, which means the basic rules of the common law principle of equity, justice, good conscience. आर्बिट्रेशन के ऊपर एक नया लॉ आ चुका है. This new law is the Arbitration and Reconciliation Act 1996. आर्बिट्रेशन का पूरा चैप्टर होता है, हम बाद में करेंगे. मैं थोड़ा सा इसके बारे में रेफर करना चाहूंगा क्योंकि हम अभी इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं. मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मोटी मोटी बातें बताना चाहूंगा. आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट 1996. दो वर्ड्स हैं इसमें, आर्बिट्रेशन भी है और रिकंसिलिएशन भी है. मतलब मकसद एक है, बट बेसिकली दोनों को डील करता है ये लॉ. ये जो लॉ है एक यूनाइटेड नेशंस का एक UNCITRAL UNCITRAL मॉडल लॉ ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन रूल्स 1976, ये यूनाइटेड नेशंस का था, उसके ऊपर हमने बेस किया है. सो आवर आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट 1996 इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस CITRAL मॉडल लॉ ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन. इस लॉ में बहुत 1940 का लॉ तो बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत ज्यादा डिटेल में आ गए. फर्स्टली दिस प्रोवाइड्स फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एज वेल एज इंटरनेशनल एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन. तो यहां पे सिर्फ डोमेस्टिक इंडियन आर्बिट्रेशन की बात ही नहीं है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी इसमें कवर्ड है. इसीलिए एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स भी हो सकते हैं, एंड फॉरेन रिकंसिलिएशंस और कंसिलिएशंस आर आल्सो पॉसिबल in this law. So that now it has got what I can say an international aspect in this law. इसमें एक दो बड़े इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं. एक तो है भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग 2002 सुप्रीम कोर्ट, एंड श्री जी ट्रैको, श्री जी SHREEJEE, second word Traco, TRACO, Shri Ji Traco Private Limited versus Paperline International 2003 Supreme Court.
फॉर इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन। ये बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं। इन दिस न्यू लॉ सब्जेक्ट मैटर क्या आर्बिट्रेशन का? आर्बिट्रेशन में कौन से मैटर्स जा सकते हैं और कौन से नहीं जा सकते? एनी कॉमर्शियल मैटर इंक्लूडिंग टॉर्ट्स, if it arises or relates to a contract, can be referred to arbitration. ये एक बेस, एक मोटा मोटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पब्लिक पॉलिसी की वजह से कुछ चीजें बाहर रखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिमोनियल मैटर्स, वो आर्बिट्रेशन में नहीं आएंगे। वी हैव फैमिली कोड्स फॉर देम। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेशन में नहीं। ये थोड़ा ना कहोगे चलो तूने मेरा एक छुरा मारा है, एक मेरे से भी करवा ले, चल एक मेरे से भी चाकू मरवा ले। आर्बिट्रेशन थोड़ा हो सकती है इन चीजों की। इंसॉल्वेंसी मैटर्स, एंटी कंपटीशन मैटर्स। सी आई वुड ऑल्सो एडवाइज यू टू गो थ्रू दीज लॉज। आजकल नए लॉज आ गए हैं, कंपटीशन लॉ। पहले जो हमारा वी यूज्ड टू हैव अ टोटल, जैसे कुछ लोगों की पूरा कंप्लीट कंट्रोल हो जाता था, मोनोपली हो जाता था, तो मोनोपलीज ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट होते थे। अभी कंपटीशन एक्ट आ गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैटर्स भी आर्बिट्रेशन में नहीं आते। या फिर कमर्शियल कोर्ट्स मैटर्स, वो भी यहां पे नहीं आते। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डू नॉट कम अंडर आर्बिट्रेशन। However, director company disputes can be referred to arbitration because ये master servant relationship नहीं है. That's the reason. Normally speaking, statutory reliefs जो statutory tribunals देते हैं वो भी आर्बिट्रेशन में नहीं आते। तो मैंने मोटा मोटा एक बर्ड्स आई व्यू बताया, मोटा मोटा कि ये चीजें होती हैं। रोल ऑफ द कोर्ट क्या होता है? द रोल ऑफ द कोर्ट इज मिनिमाइज्ड। सो दैट मीन्स अगर कहीं मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज डाल दिया अपने एग्रीमेंट में, तो फिर हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। सो दैट इज वाई आजकल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक क्लॉज डाल देते हैं, इन केस ऑफ एनी हमारा कोई झगड़ा होता है, कोई ब्रीच होता है, तो हम फिर आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो फिर आप आर्बिट्रेशन में ही जाओगे। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेक्शन 5 बहुत क्लियरली कहता है, नो जुडिशियल अथॉरिटी विल इंटरफेयर अनलेस इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। आर्बिट्रेटर अपॉइंट कौन करता है? मैं एक छोटी सी बात करके इसको खत्म करूंगा। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट अपॉइंट्स एन आर्बिट्रेटर। इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट may appoint a arbitrator. एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखनी है, नाइदर सीपीसी और एविडेंस एक्ट तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, तो नाइदर सीपीसी नॉर एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू आर्बिट्रेशन। हाउएवर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ओथ में होता है? यस इट इज अंडर ओथ। सो इंडियन ओथ्स एक्ट 1969 डज अप्लाई टू आर्बिट्रेशन एक्ट। ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या अंडर ओथ होंगी वो प्रोसीडिंग्स, एंड इट वाज क्लैरिफाइड बाय रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस चोखामल कॉन्ट्रैक्टर्स 1989 सुप्रीम कोर्ट। इंडियन ओथ्स एक्ट डज अप्लाई टू आर्बिट्रेशन एक्ट। मोटा मोटा मैंने एक छोटा सा बर्ड्स आई व्यू दे दिया, हल्का सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो वी हैव फिनिश्ड सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमने अभी खत्म किया है। सेक्शन 1 पे क्वेश्चंस क्या है पहले वो बना ले, फिर हम अगले सेक्शन में जाएंगे। सेक्शन 1,
Questions. Write short notes on judicial proceedings. Second, how does a court differ from a tribunal? Third, Indian Evidence Act applies to judicial proceedings. Critically examine. Fourth question. How far is Indian Evidence Act applicable to Army Act? Next question. Affidavits are not evidence. Do you agree with this statement? Discuss the law of affidavits in the light of this statement. Next question. Indian Evidence Act does not apply to arbitration. Critically examine. And last question. Section 1 deals with jurisdiction of Indian Evidence Act. Elucidate. अब ये पूरा बड़ा क्वेश्चन है. इसमें आप टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन लिखोगे. सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन पॉजिटिव, उसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग इन एंड बिफोर अ कोर्ट and also before courts martial, and negative, it does not apply to both affidavits and arbitration. I hope everybody is clear about section 1. Section 2 was repealed. एक ही section repeal हुआ है Indian Evidence Act में, which is section 2. We now go to section 3. Section 3 में अगर हम आते हैं, इसका टाइटल है इंटरप्रिटेशन क्लॉज. Whenever we say that it is an interpretation clause, it always means it defines. हमने पहले ही प्रियम्बल में पढ़ा था, an act to consolidate, amend and define. क्वेश्चन ये उठता है कि जो डेफिनेशंस यहां हैं वो और कहीं यूज हो सकते हैं. लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट लाइन. इन दिस एक्ट, यानी कि ये डेफिनेशंस सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए एप्लीकेबल है. इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस unless a contrary intention appears from the context. What is the aim of a interpretation clause? हमारे पास एक 1964 मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है. The purpose of a interpretation clause or a definition clause is twofold. A, to provide a key to the proper interpretation of the act. पहला. दूसरा, to shorten the language and to avoid repetition of the same words which are contained in the definition. दो एस्पेक्ट होते हैं. एक बार हमें पता चल गई क्या चीज है, जैसे डॉक्यूमेंट क्या है तो हमें पता चल गया, तो हमें अब जब भी वर्ड यूज करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में डेफिनेशन, तो डॉक्यूमेंट तो हम सब कुछ आ जाएगा. आगे जाके हम देखेंगे डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा, आगे हम देखेंगे जाके, अभी डिस्कस करेंगे. तो अगर वो लिखता है एनी मैटर एक्सप्रेस्ड अपॉन अ रिकॉर्डेबल मटेरियल, तो एक कागज भी है, एक टेप रिकॉर्डर भी है, एक वीडियो भी है, सारे डॉक्यूमेंट है. इसीलिए इंटरप्रिटेशन क्लॉज और डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसीलिए हर लॉ के शुरू में एक कंप्लीट डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज शुरू में दिया जाता है. We have already discussed the first word, court. Court includes
सो कोर्ट की ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कोर्ट की डेफिनेशन यहां एग्जॉस्टिव नहीं है। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। जजेस और मैजिस्ट्रेट्स अलग है। तो क्या मैजिस्ट्रेट जज नहीं है? अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ें, ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, तो प्लीज रिमेंबर ये सिर्फ सीआरपीसी में है कि जुडिशियल पावर सेम है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैजिस्ट्रेट कायदे से डील्स ओनली विद क्रिमिनल लॉ। मैजिस्ट्रेट इज द क्रिएशन ऑफ सीआरपीसी। देयर इज नो मैजिस्ट्रेट इन सीपीसी। तो जजेस कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस एंड सिविल जजेस, सारे जज हैं। मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं? मैजिस्ट्रेट्स आर अ क्रिएशन ऑफ सीआरपीसी, और वो सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स को देखते हैं। क्या एक मैजिस्ट्रेट जज है? मैंने जैसा कि बोला, नाउ दिस, बाय द वे, इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स बोथ विथ क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ इक्वली। ये सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स को डील कर, कोई भी ट्रायल हो, ये अपनी एंट्री करेगी। सो इंडियन एविडेंस एक्ट गवर्न्स बोथ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ट्रायल एंड सिविल जस्टिस सिस्टम का ट्रायल। अब एक पॉइंट जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, जजेस और मैजिस्ट्रेट्स। मैजिस्ट्रेट इज अ क्रिएशन ऑफ क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी। अब मेरा एक ही क्वेश्चन था, और आज हम ये लास्ट चीज करके करेंगे। आई नो काफी हैवी हो गया आज का लेक्चर, मैं और नहीं करूंगा, बस एक ये लास्ट चीज करके खत्म करते हैं। इज अ मैजिस्ट्रेट अ जज? इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 19 आईपीसी में। अ मैजिस्ट्रेट जो सजा देता है वो जज है, पर एक मैजिस्ट्रेट जो सिंपली ऊपर फाइल भेजता है कॉग्निजेंस लेके, अभी मैं बहुत बड़े बड़े जार्गन यूज कर रहा हूं, सॉरी, क्योंकि अभी हमने क्रिमिनल लॉ शुरू नहीं किया है, पर जब वो आएंगे देखेंगे। पर जहां पे वो सिर्फ एक कॉग्निजेंस लेके सेशन कोर्ट को भेजता है फाइल, वहां वो जज नहीं है। इसके लिए हम इलस्ट्रेशंस पे आएंगे। सेक्शन 19 के आईपीसी हम शुरू कर दिए, उसके अंदर बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि यही चीजें आपकी इंटरव्यू में आने वाली हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट किसको अप्लाई करता है। कोर्ट क्या होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में? सर, इट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। क्या जजेस और मैजिस्ट्रेट अलग हैं? यस सर। कहां लिखा है? सर सीआरपीसी में। तो क्या मैजिस्ट्रेट जज नहीं है? फंस गए। है, कुछ मामलों में है, कुछ में नहीं है। तो when is adjudicate वर्ड यूज नहीं करूंगा, when is deciding a case, then he's a judge. But when he's merely sending a file across to the session court, जिसको हम कहते हैं committal, then he's not a judge. ये कहां लिखा है? 19 आईपीसी में, सेक्शन 19 आईपीसी के illustrations में लिखा है। And last thing, and all persons एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। हमने अभी देखा ही है कि आर्बिट्रेशन पे एविडेंस एक्ट नहीं लगेगा। लीग एंड ऑल पर्संस लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। और जो भी ऐसे लोग हैं जजेस और मैजिस्ट्रेट्स के अलावा जो एविडेंस ले सकते हैं, ऐसे कौन हो सकते हैं? एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम कमीशंस भेजते हैं सीपीसी में भी और सीआरपीसी में भी। कोई विटनेस बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, वो नहीं आ सकता, हम कमीशन भेज देते हैं। दोनों वहां चले गए, उसका चीफ भी ले लिया, वहां क्रॉस भी कर लिया, उसका लिखित में ले आए, अंडर ओथ लाए हैं,
he is also court. So I hope I am clear about all these aspects. हमने आज सेक्शन 1 पूरा किया और कोर्ट हमने पहले भी एक्चुअली डिस्कस किया होता है सेक्शन 3 का, तो इसलिए मैंने आज कोर्ट तक खत्म किया है. टुमारो we will, or in my next lecture, we will take up the definitions now of section 3. Thank you. God bless.